Okay, see, now our unit number 1 is over and unit number 3 is over. Let me show you the index page. See, portfolio management and introduction part was the first chapter, and portfolio analysis and selection was the second chapter. So just now, yesterday we have completed our second chapter of unit 1. That means portfolio analysis and selection, in which we have done standard deviation. Hmm? We have studied about Markowitz model, single index model, multi-index model also, efficient portfolio. Okay, so we have studied all the things related to these different models, and also how to calculate a risk factor with the help of standard deviation, covariance, and beta. And then we have calculated how, holding period returns. So these were these were the practical questions divided into 4 different categories. Okay, so this was included in portfolio analysis and selection. That means looking at the risk factor and returns factor, you have to select your portfolio, the best portfolio. Okay, next is now unit number 3. We have already done fundamental analysis, in which we have done ratio analysis, and leverages. Okay, so now we are left with unit number 2. Unit number 4, that is technical analysis. It is full theoretical unit, and we have unit 5, out of which one chapter is efficient market theory, EMT, which is known as EMT, is a very short, simple, and theory chapter. And last we have KEPM. So KEPM and APT is our practical question. I mean, in this chapter, we will have practical aspect. Okay. So right now we are going to start with unit number 2, that is portfolio revision and evaluation, third chapter, and fourth chapter is bond valuation. Okay, very simple. You will feel these chapters are very, very, very simple. Okay, now unit 2 has 2 different chapters, but right now we are starting with chapter 3, portfolio revision and evaluation. Now, exactly what you mean by portfolio revision? See, when you select your portfolio, the best portfolio, when you select that, and then you have to see whether the portfolio which has been selected is rightly selected, is correctly selected, efficiently selected, or not. So to see that, the process of doing that is known as portfolio revision. And in that process, when you are earning your returns, you need to see whether those returns are your टारगेटेड रिटर्न्स. ठीक है, मतलब आपके टारगेटेड रिटर्न से वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना पड़ता है इस प्रोसेस में. एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज पोर्टफोलियो रिवीजन. लिखा हुआ है देखो, द आर्ट ऑफ चेंजिंग द मिक्स ऑफ द सिक्योरिटीज इन अ पोर्टफोलियो इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिवीजन. मतलब कब आप चेंज करोगे अपने सिक्योरिटीज को? समझो आपके पोर्टफोलियो में 2-3 सिक्योरिटीज हैं जिनको आपने पहले चेक किया वेदर द रिटर्न्स आर टारगेट रिटर्न्स. तो अगर वो टारगेट रिटर्न्स नहीं है, तो आप उन सिक्योरिटीज को चेंज करोगे, रिवाइज करोगे. तो रिवाइज हम कब करते हैं? रिवाइज मतलब हम पुराने वाले को हटा के न्यू वाली सिक्योरिटीज कब लाते हैं? जब मुझे पता लग जाए कि ये सिक्योरिटीज कुछ कुछ पोर्टफोलियो
आई मीन पोर्टफोलियो की कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो मुझे टारगेट रिटर्न्स अर्न करके नहीं दे रही हैं. सो व्हाट विल आई डू? आई विल चेंज दो सिक्योरिटीज, कन्वर्ट देम into some better one, okay, which will fetch me a good returns. ठीक है, तो इस आर्ट को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन. दैट टू इज डन बाय पोर्टफोलियो मैनेजर. देखो हमको तो पता नहीं है ना, तो हमको एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, but the person who has will do it for us, and he is known as portfolio manager. ओके, समझ में आया? तो जब हम परचेज और सेल्स करते हैं एसेट्स को इन द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, क्यों क्यों हम परचेज और सेल करते रहते हैं एसेट्स को? सो दैट हमारे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो और रिस्क को मिनिमाइज कर सकें. उसी को ही तो कहते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन. क्योंकि आप जब भी देखोगे कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, ये उतने रिटर्न्स मुझे अर्न नहीं करके देगी, तो आप उसे बेच दोगे और ऐसी सिक्योरिटीज खरीदोगे जो टारगेट रिटर्न्स अर्न करके देंगी. ठीक है, तो आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करेगी. इसके लिए सेल और परचेज करना होता है इस प्रोसेस में. मतलब पोर्टफोलियो रिवीजन में ये देखना है कि पोर्टफोलियो तो बन गया, अब कौन सी सिक्योरिटी है जो जो बेटर प्ले कर रही है. ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? यस मैम. नीड क्या है पोर्टफोलियो रिवीजन करने की? आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर आपको लगता है मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छी है, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है, तब भी पोर्टफोलियो रिवीजन करना पड़ेगा. अच्छा, अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपका जो कैश फ्लो है वो स्टॉक मतलब ब्लॉक हो गया, उसको रोटेट करना मतलब ज़्यादा बढ़ाना है, मैक्सिमाइज करने रिटर्न्स, तो भी आपको पोर्टफोलियो रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छा, रिस्क और अनसर्टेनिटी आपको लग रहा है मार्केट में ज़्यादा है, तो आपको अपनी अपनी एसेट्स को बेचकर कुछ नई एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी. मतलब फ्लक्चुएशंस आपने देखी मार्केट में, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस हैं. उस वजह से मेरी जो एसेट्स हैं, जो पर्टिकुलर एसेट्स मेरे पोर्टफोलियो में हैं, वो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो रिस्क बढ़ रहा है. रिस्क बढ़ रहा है तो आप क्या करोगे? रिस्क को कम करने के लिए वो एसेट्स को बेचकर वो एसेट्स खरीदोगे जिनमें रिस्क कम है. तो इसकी वजह से भी तो पोर्टफोलियो रिवीजन की नीड है. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना है, दूसरा इनमें मैक्सिमाइज करना है रिटर्न्स को, और तीसरा रिस्क को मिनिमाइज करना है. ये तीन बेसिक रीजंस होते हैं नीड जिसकी वजह से पोर्टफोलियो रिवीजन की नीड होती है. ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया. कंस्ट्रेंट्स इन पोर्टफोलियो रिवीजन. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, हिंड्रेंसेस. ठीक है, मतलब क्या हर्डल्स होते हैं जब हम पोर्टफोलियो रिवीजन करते हैं. जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कार नहीं चलाना पॉसिबल है वहां से, राइट? सो दैट इज एन हर्डल, दैट इज अ हर्डल बिटवीन यू एंड योर डेस्टिनेशन. ठीक है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रेंट. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है इस पोर्टफोलियो रिवीजन करते करते क्या प्रॉब्लम आती है? अब पोर्टफोलियो रिवाइज करना है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है, वो महंगा पड़ जाता है, कस्टमर को ही महंगा पड़ जाता है. टैक्सेस लगती हैं. ठीक है, अगर आपने नॉट लेस देन 12 मंथ्स आपने उसके पहले ही बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो टैक्सेस भी तो लगेंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड ऑन किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा. सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको जो टैक्स भरनी होती है, फ्लैट टैक्स रेट होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल पे. तो जो गेन हुआ उस पर आपको टैक्स भी भरनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज मतलब जितनी बार आप बेचोगे सिक्योरिटीज को उतनी बार आप ऑन करोगे ना, तो जो ऑन किया रहेगा तो उस पर टैक्स भी तो भरना पड़ेगा. So that's what I want to say. Statutory stipulations, मतलब बहुत सारी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी होती हैं गवर्नमेंट की, या लॉस जो बने हुए हैं, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, या जो हमारे सेक्शंस बने हुए हैं उसके कंस्ट्रेंट्स अलग होते हैं. ठीक है, इंट्रिंसिक डिफिकल्टीज. इंट्रिंसिक डिफिकल्टीज मतलब जैसे 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 ड्यूटीज, हैवी ड्यूटीज लगना,
ठीक है। पोर्टफोलियो पे जब हम पोर्टफोलियो को कैरी ऑन कर रहे हैं, समझो चला रहे हैं, हम पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं, तो मैनेज कर रहे हैं तो एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ जो आपने अर्न किया तो उस पर आपको कमीशन पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ हिंड्रेंस, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ना ये भी, और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक डिफिकल्टीज भी होती हैं इसकी, मतलब हिडन कुछ ऐसी हमको जो नहीं पता लग सकती हैं वो भी डिफिकल्टीज होती हैं, जैसे टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। तो आपको मार्केट के लिए रुकना पड़ेगा ना, जो आपको सिक्योरिटी बेचनी है उसके लिए भी तो आपको मार्केट के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू सी वेदर मार्केट इज अप और डाउन। ठीक है। तो ये थी कुछ डिफिकल्टीज, कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो रिविजन स्ट्रैटेजीज। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, हाँ, जस्ट जस्ट अ मिनट। स्ट्रैटेजीज में जेनसन अगर नहीं नहीं है ना, बस सिंपल आप ये समझ लो, एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ऐसे होता है जो एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब जिसमें आप बिलीव करते हो कि जो जो मेरा इन्वेस्टर है ना वो बहुत डाइवर्जेंट है, हेट्रोजीनियस है, मतलब उसका जो रिस्क रिटर्न्स का जो एपेटाइट है ना वो स्ट्रांग है, मतलब वो रिस्क लेकर रिटर्न्स अर्न करना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज एक्टिव रिवीजन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। और एक होता है पैसिव। पैसिव मतलब बहुत बहुत जिसमें जिसमें एक्टिवली इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं होता और उसकी एक्सपेक्टेशंस है ना होमोजीनियस होती है, मतलब सेम, और रिस्क उसको लगता है कि कम लेकर मैं रिटर्न्स नॉमिनल अर्न कर सकूं, तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर रिवाइज करता है पोर्टफोलियो को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो रिवीजन। अब देखो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन क्या होता है। अब इवैल्यूएशन से तुम नाम से ही समझ रहे हो, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना कि जो मैंने फंड्स लगाए हैं जिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, वो मेरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। मेरी जो स्किल्स लगी हुई है, मेरा जो टाइम लगा हुआ है, मेरे जो फिनेंशियल रिसोर्सेज लगे हुए हैं, वो सफिशिएंट हैं कि नहीं है, और वो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कम फंड्स लगे हुए हैं तो ज्यादा फंड्स लगाने की नीड है, और ज्यादा लगे हुए हैं तो निकालने की नीड है। सो दिस दिस प्रोसेस इज नोन एज पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। ऑफ कोर्स ये भी आपका पोर्टफोलियो एक मैनेजर प्रोफेशनली जो मैनेज करता है वो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, जो आपको ये पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज करके देता है। ठीक है। फैशन ट्रेंड के हिसाब से, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो इवैल्यूएट होता है। ठीक है। अभी देखो इसके ना कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, सिचुएशंस दी हुई हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन की। कभी कभी हम खुद ही इवैल्यूएट करते हैं। अभी मुझे ना मार्केट के बारे में बहुत जानकारी आ गई है, सालों से मैं सिक्योरिटीज में पैसा डालती हूँ, शेयर्स में, तो मुझे इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में पता लग गई। अब मुझे नॉलेज आ गया, तो कभी कभी मैं खुद अपने स्किल्स, मेरे स्किल्स जो बढ़ गए हैं अभी, उसके हेल्प से मैं खुद ही, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है मैं खुद ही, ठीक है, इवैल्यूएट करती हूँ कि मेरा ये पोर्टफोलियो, मैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में इतनी इतनी सिक्योरिटीज हैं जो रिटर्न्स, जिसके रिटर्न्स बेटर हैं, और कुछ सिक्योरिटीज हैं जिसके रिटर्न्स बेटर नहीं है। तो I will suggest my manager to sell off those securities which are not performing better, या जो जो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, जिसके रिटर्न्स बेचने से मुझे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो वो बेच दो। ऐसे करके हम कभी कभी सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर इवैल्यूएट करके देगा, बिकॉज आपको उतनी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अभी मैंने पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं खरीदी है, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स में अट्रैक्टिव रिटर्न्स, मिनिमम रिस्क, हाई सेफ्टी, प्रॉम्प्ट लिक्विडिटी, ये फीचर्स हैं कि नहीं है, उसके बारे में हम इवैल्यूएट करते हैं टाइम टू टाइम। मार्केट को देखकर, मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देखकर, क्या रिस्क तो नहीं बढ़ गया, रिटर्न्स कम तो नहीं हो गए, सेफ्टी है कि नहीं है, और लिक्विडिटी मतलब जब मैं बेचूं तब मुझे कैश उतनी मिल रही है जितनी मुझे चाहिए। ठीक है। तो ये आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए करता है। ठीक है।
इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, इवैल्यूएशन पर्सपेक्टिव मतलब ये एक और सिचुएशन है जिसमें मुझे अपनी अपनी पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना पड़ता है। पर्सपेक्टिव मतलब पर्सपेक्टिव को देखकर सेवरल ट्रांजैक्शंस होते हैं परचेज और सेल्स में। जब हम परचेज और सेल्स करते हैं ना सिक्योरिटीज को, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, ठीक है, मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देखते हुए रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर मैंने ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी बेची तो इतने रिटर्न्स होंगे, और ये पर्टिकुलर कंपनी का सिक्योरिटी शेयर्स बेचा तो इतने रिटर्न्स होंगे। मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो देखकर आपको करेक्ट डिसीजन लेना होता है, इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांजैक्शन व्यू। जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, तो उस ट्रांजैक्शन को करेक्टली करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टली, जिसमें प्रॉफिट अर्न हो सके और रिस्क मिनिमाइज हो सके, वो होता है ट्रांजैक्शन व्यू। मतलब प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो सके जब आप परचेज सेल कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी व्यू। अब मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कौन सी सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, कौन सी सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस कम हो रहा है, कौन सी सिक्योरिटी का कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है और कौन सी सिक्योरिटी का कॉस्ट प्राइस कम हो रहा है। देखो, पता लग जाए कॉस्ट प्राइस कम है तो हम फटाक से खरीद लेंगे, और जब बढ़ेगा सेलिंग प्राइस, उसका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा, तब हम बेच देंगे। तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक और सिचुएशन है जिसमें मुझे पोर्टफोलियो इवैल्यूएट करना पड़ता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू। अब पूरे पोर्टफोलियो के बारे में, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में सोचना है, ठीक है, टू रिड्यूस द रिस्क, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस हो और रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो। यही तो मेरा मेन मोटो होता है पोर्टफोलियो खरीदने का। ओके, सो ये थे सारे सिचुएशंस जिसमें मुझे अपने पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना पड़ता है। आर यू गाइस गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, नाउ अब आपका शुरू हो रहा है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मतलब अब इस पे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करनी है, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको सम्स आएंगे। एवरीथिंग विल बी गिवन रेडीमेड, रेडीमेड अवेलेबल होगा, और आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुटअप करना है और आंसर्स निकालने हैं, दैट्स इट, ठीक है। और फॉर्मूलाज भी मिलती जुलती हैं। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये मेजरिंग रिटर्न्स है। अभी अभी तो मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो रिवीजन एंड पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। ये क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि यही तो है जो अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, मेजर करने वाले। अभी हम पोर्टफोलियो इवैल्यूएट क्यों करते हैं, मेजर करने के लिए कि कौन सी पोर्टफोलियो में कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो जो बेटर परफॉर्म कर रही हैं और जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रही हैं। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए तो मेजर करने पड़ेंगे ना मुझे मेरे रिटर्न्स। पोर्टफोलियो में हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न्स, हर एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिटर्न्स को मेजर करना पड़ेगा। या अलग अलग पोर्टफोलियो मैंने बनाए हुए हैं, तो अलग अलग पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मेजर करना पड़ेगा। तो जिसका मेजरमेंट अच्छा, रिटर्न ज्यादा, ज्यादा कम, ये मेजरमेंट ही तो होती है। इवैल्यूएट हम यही तो करते हैं, किसके रिटर्न्स अच्छे हैं, किसका रिस्क कम है, किसके रिटर्न ज्यादा है, किसका रिस्क कम है। तो कम ज्यादा तभी तो मैं बोलती हूँ जब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो मेजरमेंट करने के 3 मॉडल्स बनाए गए हैं। ध्यान से समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। मेजर करना है अभी हमको रिटर्न्स को। अभी अभी हमने वही तो पढ़ा, रिस्क इवैल्यूएट करना, रिटर्न्स इवैल्यूएट करना, इन शॉर्ट पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन। इन दोनों में हम करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं रिटर्न्स को, अपने अपने रिटर्न्स को चेक करते हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, मतलब मेजरिंग रिटर्न्स। उसके लिए ना 3 मॉडल्स बनाए गए थे, एक ट्रेनियर मेजर, द शार्प मेजर एंड जेनसन मेजर, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ट्रेनियर मेजर, परफॉर्मेंस चेक करना है आपको, आपके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट। तो जब आप इवैल्यूएट करते हो ना, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट या फिर मेजरिंग रिटर्न्स।
अब है ना, उसके लिए बनाया गया ट्रेनियर इंडेक्स, ठीक है, ट्रेनियर इंडेक्स। ट्रेनियर है ना, जिसने बनाया था ना, उसका नाम है ये ट्रेनियर, इसीलिए उसने अपने नाम के हिसाब से इसका, इस मॉडल का नाम रख दिया ट्रेनियर इंडेक्स। क्या नाम रख दिया? क्या नाम रख दिया? ट्रेनियर टेन्योर इंडेक्स। इंडेक्स, ट्रेनियर मेजर, ठीक है। अब इस मेजर में ना यस। इंडेक्स लिया गया, किस चीज का इंडेक्स? रेशियो, मतलब इंडेक्स इज अ रेशियो, हाँ, रेशियो लिया गया। किस चीज का रेशियो लिया गया? रिटर्न्स जनरेटेड बाय फंड ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न्स। मतलब एग्जांपल ले लो, अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला होता तो आपको पक्का 8% तो पक्का मिलता, पर क्योंकि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं डाला तो आपको 10%, 12%, 15% भी तो मिल सकता है ना। यस और नो? हम यस गवर्नमेंट मैम। सिक्योरिटीज में नहीं डाल के प्राइवेट कंपनीज में डाल रहे हैं, तो जितना ज्यादा रिस्क उतने ज्यादा रिटर्न्स, आई मीन होने यस के मैम। चांसेस हैं। हाँ, हाँ, मतलब ज्यादा रिटर्न्स अगर चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, यूजुअली हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट, जितना मैंने जितना मैंने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके उसमें से रिटर्न्स जनरेट किए हैं, ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न्स, मतलब माइनस करके, ओवर एंड अबव मतलब माइनस करना है ना, मतलब आर आई माइनस आर एफ। आर आई इज ओवर एंड अबव जितना आपने एक्स्ट्रा रिटर्न्स अर्न किया, माइनस ओवर एंड अबव मतलब किससे ज्यादा? रिस्क फ्री रिटर्न्स, आर एफ रिस्क फ्री, जिसमें रिस्क नहीं होता। किस में रिस्क नहीं होता? रिस्क फ्री। जिसमें रिस्क नहीं होता, किस में रिस्क नहीं होता? जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर कोई आपने पैसा डाल दिया, मतलब कुछ सिक्योरिटीज आपकी ऐसी हैं जो रिस्क फ्री हैं, और कुछ सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में ऐसी हैं जो रिस्क वाली, रिस्क ज्यादा है जिसमें थोड़ा, तो रिटर्न्स भी ज्यादा हो सकते हैं ना। तो इसीलिए आपको पहले मेजर करना है कि कितना मैंने रिस्क एक्स्ट्रा अर्न किया, माइनस रिस्क फ्री रिटर्न्स के कंपैरिजन में, होल डिवाइडेड बाय, देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ रिटर्न्स जनरेटेड बाय द फंड ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एंड सिस्टमेटिक रिस्क। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 2 में जब पोर्टफोलियो सिलेक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे, एनालिसिस एंड सिलेक्शन, उसमें हमने समझा था सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या होता है? बीटा, मतलब ये बोलता है आप बीटा को पकड़ के आप चेक करो, रिटर्न्स ऊपर, डिनोमिनेटर में रिस्क, रिटर्न्स ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रिस्क रहेगा। मतलब आपको क्या करना है? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट, सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है बीटा। तो फॉर्मूला कैसे बन गई इसकी ट्रेनियर इंडेक्स की? आर आई माइनस आर एफ होल डिवाइडेड बाय बीटा। समझ में आया? ये देखो, आर आई नहीं बोल के हम सिर्फ आर लिखेंगे तो भी चलेगा। आर मतलब रिटर्न्स, मुझे कितने रिटर्न्स मिले, माइनस कितने रिटर्न्स रिस्क फ्री थे, उन दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय, हम ट्रेनियर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय बीटा। मतलब ट्रेनियर ऑलवेज स्पीक्स अबाउट बीटा, उसको उसको बीटा में ज्यादा विश्वास है, मतलब फेथ है कि बीटा है ना, प्रॉपर रिस्क कैलकुलेट करके देता है मुझे, सिस्टमेटिक रिस्क। तो वो बीटा की मदद से रिस्क कैलकुलेट करता है और रिटर्न्स को रिस्क से डिवाइड करके आपको बताता है कि 4.8, एग्जाम्पल देखो 4.8 पोर्टफोलियो 1 का रिटर्न्स है, पोर्टफोलियो वाई का 1.82, मतलब थोड़ा कम। तो मार्केट इंडेक्स को कंपेयर किया तो 3.33, मतलब आप देखोगे तो मार्केट से ज्यादा पोर्टफोलियो एक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके रिटर्न ज्यादा वो बेटर परफॉर्मेंस है ना उसका। यस मैम। ठीक है ना, मतलब मैं एग्जांपल दिखा रही थी आपको सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो इसकी फॉर्मूला क्या है? ट्रेनियर की आर माइनस आर एफ अपॉन बीटा, दैट्स इट। ऊपर न्यूमरेटर में रिटर्न्स रहेंगे दोनों,
आर मतलब रिटर्न्स, बी मतलब बीटा मतलब रिस्क। तो न्यूमरेटर में रहेंगे रिटर्न्स, डिनोमिनेटर में रहेगा रिस्क। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, रिटर्न्स डिवाइडेड बाय रिस्क। बट आपको न्यूमरेटर में कौन सा रिटर्न चाहिए, आर माइनस आर एफ। मतलब आपने एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितने अर्न किए एक्स्ट्रा रिस्क लेने की वजह से, कि आपने कुछ प्राइवेट सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट किया जिसमें आपने अर्न किया 12%, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें से 8% आपको मिला। सो सो 12 माइनस, समझो आपने 12 अर्न किया, सो 12 माइनस 8 विल बिकम 4। सो 4 डिवाइडेड बाय बीटा। आया समझ में कैसे करना है? यस मैम। बोलो Yes, एक बार ma'am. फिर से फॉर्मूला बोलो ट्रेनियोर की। आर माइनस आर एफ अपॉन R बीटा। minus R beta. वेरी गुड। अब शार्प मेजर, नेक्स्ट। अब शार्प मेजर क्या बोलता है, देखो शार्प मेजर कहता है, ये भी रेशो ही आपको बताता है। वो कहता है ठीक है, एक्स्ट्रा रिस्क जितना आपने लिया तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी होते हैं, तो ठीक है, मतलब ट्रेन्योर के बारे में बोलता है वो, ठीक है आर माइनस आर एफ इज ओके, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि हमको टोटल रिस्क लेना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। बीटा क्या करता है, मार्केट के रिस्क को लेकर कंपेयर करता है, ठीक है। बीटा वो मतलब सिस्टमैटिक रिस्क है। हमने समझा था बीटा के, हमने सम्स भी की, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो पूरा टोटल रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वो टोटल रिस्क लेता है, मतलब एवरी एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिस्क फैक्टर। हर एक एस्पेक्ट को आप लेकर चेक करते हो कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। सिर्फ मार्केट के बारे में सोचकर नहीं आप बीटा कैलकुलेट करते हो, रिस्क कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो शार्प मेजर, शार्प मतलब विलियम शार्प, ये विलियम शार्प थे, पता नहीं यहाँ पे नाम पूरा लिखा हुआ है कि नहीं, बट क्योंकि मुझे पता है तो मैं आपको बता पा रही हूँ। विलियम शार्प करके एक आई मीन एक्सपर्ट था, तो उसने ये मॉडल क्रिएट किया था, जिसने ट्रेनियोर को बोला कि आई मीन ट्रेनियोर की मॉडल पे कमेंट करते हुए अब न्यू एक मॉडल क्रिएट करके दिया, जिसमें बोला कि आर माइनस आर एफ इज ओके, मतलब आप जितना एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न कर रहे हैं उसके पीछे आपने कितना टोटल रिस्क लिया है वो देखना चाहिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो समझ में आया ये कहाँ इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर मुझे परफॉर्मेंस मेजरमेंट लेनी है तो मुझे टोटल रिस्क को कंसिडर करना चाहिए। तो टोटल रिस्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब बीटा को हटाकर इसने स्टैंडर्ड डेविएशन रख दिया। तो फॉर्मूला कैसे बन गई, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये किसने बताया था, शार्प मेजर। ये किसकी फॉर्मूला है, शार्प मेजर की Sharp फॉर्मूला शार्प है, measure. मेजर। ठीक है। अब लास्ट जेनसन मेजर, अगर आपको चाहिए तो शार्प मेजर को भी देख लो, फॉर्मूला लिखी हुई है यहाँ पे, आर माइनस आर एफ अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, द मोर द बेटर, मतलब जिसका परफॉर्मेंस अच्छा वो मेरे लिए पोर्टफोलियो अच्छा, ठीक है। अभी एक्स का देखो 24%, वाई का देखो, वाई पोर्टफोलियो 13% सिर्फ, और मार्केट का 16%, मतलब मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न्स मुझे ऑन होके मिल रहे हैं पोर्टफोलियो एक्स में। तो पोर्टफोलियो एक्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। नाउ जेनसन, ये माइकल जेनसन थे। देखो माइकल जेनसन ने ये मॉडल बनाया था, देखो लिखा भी हुआ है, दिस मेजर वाज डेवलप्ड बाय माइकल जेनसन एंड समटाइम्स रेफर्ड एज, मतलब ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। कभी कभी हम जेनसन मेजर को डिफरेंशियल रिटर्न्स मेथड भी कह सकते हैं, डिफरेंशियल रिटर्न मेथड, ठीक है। अब पता लगेगा इसको हम जेनसन मेजर में क्या कैसे मेजर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ द रिटर्न्स दैट फंड हैज जनरेटेड, मतलब कितने फंड में से कितने रिटर्न्स जनरेट हुए हैं वर्सेस, मतलब माइनस करके
वर्सेस मतलब माइनस करके डिफरेंस निकालना है ना मुझे, तभी तो इसका नाम डिफरेंशियल रिटर्न्स है ना। वर्सेस द रिटर्न्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड, मतलब कितने रिटर्न्स मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट किए थे कि मुझे इस फंड में से जनरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, मतलब बीटा। मतलब अगर बीटा को मैं ध्यान में रखूं, रिस्क को ध्यान में रखूं, तो मुझे कितने रिटर्न्स मिलने चाहिए थे और कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके बीच में डिफरेंस निकालना इज नोन एज जेन्सेन मेजर। आया समझ में सबको? यस, समझ में आया? हाँ मैम। Yes, ma'am. तो देखो अब नीचे फॉर्मूला दी गई है इसकी, आर एफ प्लस बीटा, मतलब आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न्स, मतलब मुझे रिटर्न्स मिले समझो आर एफ फ्री, मतलब जिसमें कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से मुझे 8% मिल रहा है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, 8% पक्का मिलेगा। ठीक है, हमने रिस्क बहुत कम लिया है तभी तो रिटर्न्स भी कम है ना, 8%। ये तो पर पक्का मिलेगा, 8% में कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री। तो रिस्क फ्री रिटर्न्स 8% है, प्लस प्लस अगर मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, प्लस अगर मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, मतलब एक्स्ट्रा रिस्क मतलब सिस्टमेटिक रिस्क बीटा, अगर मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया तो मैं कितने रिटर्न्स अर्न कर रही हूँ एज कंपेयर टू रिस्क फ्री रिटर्न्स, उसको बोलते हैं आरएम, एक्स्ट्रा रिटर्न्स। मतलब आरएम मतलब रिटर्न्स ऑन मार्केट, मार्केट में अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिस्क लेने की वजह से रिटर्न्स अर्न किए तो उसको बोलते हैं आरएम। आरएम मतलब रिटर्न्स ऑन मार्केट, रिटर्न्स ऑन मार्केट माइनस रिटर्न्स ऑन रिस्क फ्री रिटर्न्स। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न्स। तो रिस्क फ्री रिटर्न्स तो आपको 8% मिल ही रहा है ना, एग्जाम्पल। तो अगर आपने कुछ सिक्योरिटीज ऐसे भी खरीद ली पोर्टफोलियो में जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, मतलब प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए एग्जाम्पल, तो उसमें रिस्क ज्यादा तो रिटर्न्स भी ज्यादा। तो अगर आपको रिटर्न्स 12% मिले तो 12 माइनस 8 इज 4%, मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया, आपको एक्सपेक्टेड था 8 बट आपने एक्स्ट्रा कितना रिटर्न्स अर्न किया 4%। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं ना हम, 8 माइनस 12, मतलब आपको मिलना चाहिए था 8, आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, बीटा, बीटा मतलब रिस्क, उसकी वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न्स हुआ मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा डालने की वजह से। ठीक है, तो उसे कहते हैं आर एम माइनस आर एफ, मतलब एक्स्ट्रा रिस्क, जिसे हम बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। जब जब मैं बोलूंगी रिस्क प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न्स, रिस्क रिस्क प्रीमियम नहीं, रिटर्न्स प्रीमियम, आरपी। रिटर्न्स प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको मिलना। ये एक्स्ट्रा रिटर्न्स कब मिलते हैं आपको, जब आर एम माइनस आर एफ होते हैं। मतलब आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला 8%, उसमें से प्राइवेट रिटर्न्स का आपने माइनस कर दिया 12%, तो आपने एक्स्ट्रा कितना अर्न किया 4%। सो दैट 4% इज नोन एज रिस्क। एक्स्ट्रा लेने की वजह से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिले, जिसे हम फाइनेंशियल लैंग्वेज, फिनेंस के लैंग्वेज में बोलते हैं आरपी, रिटर्न्स प्रीमियम। क्या बोलते हैं उसे, रिटर्न्स प्रीमियम। तो अगर मैं ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ ना बोल के आरपी बोलूं तो बात एक ही है, सिर्फ आरपी। तो आरपी की फॉर्मूला क्या होती है, आर एम माइनस आर एफ। आरपी मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न्स कितने अर्न किए, तो एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकालने के लिए मुझे 12 माइनस 8 करना पड़ेगा। कितना मैंने एक्स्ट्रा, कितना है, मैंने एक्सपेक्ट किया था 8 और मुझे मिला कितना वाकई में एक्चुअल 12, सो 12 माइनस 8 इज 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को माइनस कर रहे हैं टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ माई पोर्टफोलियो। ये जेन्सेन मेजर की फॉर्मूला है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। और यही सेम फॉर्मूला हम लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कैपेम, सेम फॉर्मूला। वो भी जेन्सेन मेजर को सपोर्ट करते हुए उसने कैपेम बनाया था। मतलब इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे कैपेम मेथड, तो यही मेरा कैपेम मेथड है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये मेरा कैपेम मेथड है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, वो करेंगे हम बाद में लास्ट चैप्टर में। मतलब इन शॉर्ट अभी आपने फॉर्मूला सीख ली, ठीक है ना।
तो बताओ मुझे अभी ट्रेनियर और मेजर की फॉर्मूला। R minus RF upon beta. वेरी गुड। शार्प मेजर की फॉर्मूला। R minus RF upon standard deviation. वेरी गुड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जेनसन मेजर। RF plus beta into RM minus RF. वेरी गुड। हम इसको बोलते कैसे हैं, आई विल टेल यू। आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। मतलब क्योंकि आर एम माइनस आर एफ तो आप ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन को डालने की या बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसको कैसे बोला जाता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है आपके, ठीक है। अभी है ना, मैंने जैसे अब मैं आपको हिंट बताती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, ट्रेनियर और शार्प में कंफ्यूजन हो जाती है उनको, क्योंकि पूरी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज है। तो अब बहुत इजी तरीका क्या है इन दोनों को मेमोराइज करने का। देखो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, अब फॉर्मूला को थोड़ा कंफ्यूजन दूर करनी है ना, कि एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा है ट्रेनियर में बीटा था डिनोमिनेटर में कि शार्प में बीटा था। बहुत सिंपल, शार्प कहाँ से शुरू होता है, एस, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ हिंट बता रही हूँ, सो दैट आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं हो कि किसके नीचे क्या है। शार्प में एस होता है और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एस। समझ में आ रहा है। रिपीट करो मैम एक बार वापस। शार्प, शार्प की स्पेलिंग क्या है, एस एच ए आर पी, एस